After Netaji, it is now Bhagat Singh's family that has demanded declassification of files on the freedom fighter. The martyr's family alleges that Congress snooped upon them. They also claim that Congress conspired against Bhagat Singh because they felt threatened by the freedom fighter. Let's listen in to Abhay Singh and what he had to say on this entire matter. ऐसा है कि जो अंग्रेजों के टाइम से स्नूपिंग चलती आ रही है वो तो एक उनकी एक ड्यूटी थी, उन्होंने करना ही था। पर उसके बाद भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो है वो स्नूपिंग जो है होती रही हमारी फैमिली की, स्पेशली हमारे फादर की जो है जब एमएलए बने पहली बार जनसंघ से 1962 से लेकर 67 तक, तो उस समय भी जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने चाहा कि ये कांग्रेस ज्वाइन कर लें, उन्होंने मना किया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जैसे बिफोर पार्टीशन जो है वो उनको बिना मुकदमे बिना किसी वजह के DIR एक्ट होता था उसके तहत बंद कर दो और 5-6 साल तक जब सरकार चाहे उनको रिलीज कर दो। तो वो ऐसा ही वो सरकार चाहती थी। तो उन्होंने एक साजिश बनाई, रिपोर्टिंग कराई कि चाइना वार जो है वो हार गया है हिंदुस्तान, उसका जिम्मेवार पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उनको कुछ ये लोग 4-5 लोग पुराने रेवोल्यूशनरी इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक साजिश की है कि इनको मारा जाए। तो उसके तहत एक पंजाब सरकार ने फाइल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी ताकि वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई हो भी अंदर इनको कर दिया जाए। तो वो उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे होम मिनिस्टर, जो हमारी जानकारी है, उन्होंने ये लिखा कि ये स्ट्रिक्टली वॉच किया जाए। तो स्ट्रिक्टली वॉच में ये हो गया कि 24 घंटे के लिए मतलब हर टाइम जो CID है, IB है, उनके कोई ना कोई मेंबर घर में ही घुस गए, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में आ गए और घर के काम के लिए कुछ न कुछ ऐसा, और हर टाइम जहाँ भी जाना तो हर टाइम वो शैडो में रहते रहे। तो ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, मतलब ज़्यादा जब फोर्स थी। तो जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर का मर्डर हो गया उसके बाद कुछ कम हो गई, उधर पंडित जी की भी डेथ हो गई, पर चलता आज भी रहा है। आज तक जो है ये सिलसिला चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अपना काम पहले तो कहीं ना कहीं आसपास से करते थे। My colleague Prema now joining me on the phone line. Prema, we just heard Shahid Bhagat Singh's nephew. He clearly alleges that the Congress party had snooped on the family of Bhagat Singh. Now, what according to them could be the possible reasons for this and what are their demands? Well, if you see, these are extremely serious allegations coming from the family members of Shahid Bhagat Singh. In fact, we spoke to the grandnephew of Shahid Bhagat Singh, Yadvinder Singh also, and as you saw the interview of Bhagat Singh's nephew, Abhay Singh, what all these family members have to say is that the family of Shahid Bhagat Singh was snooped by the Congress party. Whenever the Congress party was in power, the government had snooped on Shahid Bhagat Singh's family, and the snooping started post-independence and it continued till very recently, till the Congress party was in power. Now, what the family members are basically alleging is that the Congress party used to use the Intelligence Bureau to snoop on Shahid Bhagat Singh's family. Okay. And what the family members are really asking is, why is it that the Congress party really thought that Shahid Bhagat Singh's family members were a threat to the society? Right. And this needs to be answered. In fact, what the family members are now requesting is, just like the West Bengal government had declassified the both files between 1938 to 1947. Right. So clearly the demand is once again for declassification of those files. We'll come back to you, Prema. Many thanks for now. In fact, we have more inputs on this. इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा, बुरा लगता है, क्योंकि देखिए हमारी फैमिली आज भी है या पहले भी थी, इस देश के लिए ही काम करती है, समाज के लिए ही काम करती है, और बुरा लगता है। चलिए अंग्रेज करते तो समझ में आता, उनका काम था, हाँ अंग्रेज करते तो समझ में आता, पर उनकी सरकार को क्योंकि हमसे खतरा था। पर अब जो इंडियन गवर्नमेंट उसके बाद बनती रही है या जो बन रही हैं, उनको क्या खतरा रहा हमारे परिवार से, या क्यों उनको हम पे क्वेश्चन मार्क लगाए, क्योंकि हमने कोई गलत एक्टिविटी करी नहीं। आज भी हम जैसे आ रहे हैं तो भगत सिंह जी की याद में कुछ प्रोग्राम करके आ रहे हैं भोपाल में। यही हमारा काम है कि भगत सिंह जी से दोस्ती कराई जाए इंडियन यूथ की, ये हमारा काम है और यही हमारा कॉज है, यही हमारे जनरेशन करती है। आप कांग्रेस पार्टी से क्या पूछना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो अब हाल फिलहाल में चल रही है उनसे ही पूछना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी।
मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह जी के चाचा जी जो सरदार अजीत सिंह जी हैं, उनके भी 40 इयर्स उनको देश निकाला दिया गया था। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी किसानों के ऊपर, पगड़ी समाज अड्डा के नारे से। तो हमारी ये मांग है इंडियन गवर्नमेंट से, जो प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है, कि वो लोग भगत सिंह जी से जुड़े हुए या उनके चाचा जी से जो जुड़े हुए सारे जो ब्रिटिश टाइम के दस्तावेज हैं उसको डिक्लासीफाई करे, पब्लिक डोमेन में लाए कि उस वक्त क्या हुआ था उनके ट्रायल के टाइम पे, या ऐसी क्या बातें थी जिसको ताक पे रखा गया था उस समय के लीडरान ने या उस समय के लोगों ने। उसके बारे में मेरा मानना तो ये है कि कांग्रेस सदा से डरती रही है। उनको सदा ये खतरा रहा है कि तुम आपकी जो वो एथिक्स के ऊपर थे नहीं, तो उनको ये लगता था कि आपकी सरकार कभी ना कभी जरूर क्रांतिकारी परिवारों से आएगा, कि उनके खून के अंदर है देश का जज्बा और वो उनको कभी भी पलट सकते हैं। वो देश में ऐसा कभी कुछ नहीं, उन्होंने पहले भी नहीं होने दिया अंग्रेजों के टाइम पे जब इतना ज़्यादा विरोध था। तो इस समय तो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो उनको इस बात का खतरा था कि वो देश में कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्रांतिकारी परिवार है, दोबारा से खून वापस आएगा, वो कुछ ना कुछ दोबारा से फिर पलट देंगे। उनको इसी बात से हर समय डर रहता था।